Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about number systems, NCERT class 9 maths, chapter 1, exercise 1.2. Okay, in the previous video that we have already discussed about exercise 1.1 complete solution. You can also check it out in the description box, right? Okay, so today we'll start exercise 1.2. Okay, let's start. Okay, just look at here, question number 1. What it is asking about that, state the following statements true or false and give reasons. Okay, question number 1, I look at here. Every irrational number is a real number. That is the question, and you have to check it out the statement and tell whether it is true or false and give the proper reasons, right? Okay. Every irrational number is a real number. Every irrational number is a real number. Huh? Yes, true. Yes. Every irrational number is a real number. Yes, true. Yes or no? Because the real number, जो real number होता है ना, the real number, what is the definition of real number? Can you please tell me? The real number, it consists of both a rational number and irrational number, right? The real number consists of both rational number and irrational number, right? So this is the definition of real number, okay? The real number consists of both rational number and irrational number, right? Question is asking every irrational number is a real number. हाँ है ना, true. Okay, clear है कि नहीं? जैसे कि for example एक irrational number के example I'm telling you that is root 5 or root 3, 5. So these are what? Irrational number. So these are what? Irrational number. These irrational number belonging to whom? Real number. Yes. This irrational number belonging to whom? Real number. Yes. So that is why every irrational number is a real number. Yes, absolutely right. That is true. Clear है? So irrational number का definition क्या है? What is the meaning of irrational number? The number which cannot be expressed in the form of p by q, where p and q are integers and q not equal to 0, right? In other words, you can say that the number which is not a rational number is called as irrational number, right? So here root 5, root 3, root 2, pi, these are irrational number, right? But what is the definition of real number? रियल नंबर का डेफिनेशन क्या है? रियल नंबर का डेफिनेशन है रियल नंबर कंसिस्ट ऑफ बोथ रेशनल नंबर एज वेल एज इरेशनल नंबर, राइट? सो द क्वेश्चन इज आस्किंग एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर. हाँ है ना, ट्रू. क्लियर है? ओके. सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट डबल लाइन. एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट ऑफ एम वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर. एवरी पॉइंट नहीं होगा भाई. एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन is of the form under root of m where m is a natural number. नहीं होगा. सब कुछ नहीं होगा. कुछ केस में होगा, not all the cases. false होगा. false कैसे? मैं क्या एग्जाम्पल आपको बता दूँ कैसे ये एग्जाम्पल. तो मान लो m का वैल्यू कितना है? 9 है. ठीक है, m का वैल्यू कितना है? 9 है. तो m क्या है? एक नेचुरल नंबर है. m क्या है? एक नेचुरल नंबर है कि नहीं? m क्या है? एक नेचुरल नंबर है कि नहीं? ओके, तो 9 इज व्हाट? नेचुरल नंबर. यस. अच्छा, रूट 9 मतलब रूट एम ना, रूट 9 कितना है? 3 है कि नहीं? क्वेश्चन क्या बता रहे? एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम मतलब अंडर रूट ऑफ एम. अच्छा, तो अंडर रूट ऑफ 9 मतलब रूट 9 का आंसर कितना है? 3 है. सो 3 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हो? हाँ कर सकते हैं. क्यों नहीं कर सकते हैं? इस केस में सेटिस्फाइड है, कर सकते हैं. हाँ कर सकते हैं. लेट दिस इज ए नंबर लाइन. ये 0 1 2 3. हाँ है, 3 नंबर लाइन में रिप्रेजेंट हो सकता है इन दिस केस, बट नॉट ऑल द केसेस. समझ में आ रहे? नॉट ऑल द केसेस. कैसे? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज आई एम सेइंग देयर इज ए नेगेटिव नंबर. यू नो दैट द नेगेटिव नंबर आल्सो लाइज ऑन द नंबर लाइन, है कि नहीं? ये एक नंबर लाइन है. सो लेट दिस वन इज 0, दिस वन इज 1, दिस वन इज 2, दैट इज प्लस 1 2 3 4 लाइक दिस. ओके, क्लियर है? ओके, let this one is what? -1. let this one is what? -2. let this one is what? -3. let this one is what? -4. ठीक है. अच्छा, सो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट में. अरे एवरी पॉइंट नहीं होगा. मान लो मैं इसको लेता हूँ -3. अच्छा, -3 मुझे बताइए -3 क्या है? एक नेगेटिव इंटीजर है. -3 इज अ व्हाट? नेगेटिव इंटीजर. इट इज नॉट ए नेचुरल नंबर. -3 इज नॉट ए नेचुरल नंबर. यस और नो? अगर आप रूट ओवर ऑफ -3 करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा 3i क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है. क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर. समझ में आ रही है कि नहीं? तो ये 3i रिजल्ट है. क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर. इट इज नॉट ए नेचुरल नंबर. नॉट ए नेचुरल नंबर. समझ में आ रही है मैं क्या बता रहा हूँ? नॉट ए नेचुरल नंबर, राइट?
सो इन दिस केस फॉल्स है। समझ में आ रहा है कि नहीं? एवरी पॉइंट इन द नंबर लाइन इज द फॉर्म, नहीं नहीं नहीं, ऑल द पॉइंट नहीं होगा इन दिस केस। लुक एट हियर, दैट इज द नंबर लाइन, दैट इज नेगेटिव नंबर इज देयर, ठीक है। तो -3 को आप क्या बोलेंगे? एक नेगेटिव इंटीजर बोलेंगे, बोलेंगे कि नहीं? हाँ बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, तो मैं क्या करूंगा, रूट ओवर ऑफ -3, अंडर रूट ऑफ -3, अंडर रूट ऑफ -3 कितना आएगा ना, 3i आएगा। 3i क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, 3i क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। सो इट इज नॉट ए नेचुरल नंबर, इट इज नॉट ए नेचुरल नंबर, दैट इज व्हाई कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड। समझ में आ रहा है? नॉट सेटिस्फाइड, दैट इज मीन्स व्हाट? फॉल्स। तो इस केस में क्या हो रहा है ना, फॉल्स हो रहा है। इस केस में क्या हो रहा है? फॉल्स हो रहा है, ठीक है। द क्वेश्चन है आस्किंग एवरी पॉइंट इन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। नहीं नहीं, इस केस में सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, सो दैट इज व्हाई फॉल्स, दैट इज व्हाई फॉल्स। क्लियर है? ओके। सो डियर स्टूडेंट्स, इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो फर्स्ट टाइम और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। ओके, नेक्स्ट लुक एट द नेक्स्ट पार्ट। So there is a every real number is an irrational number। देखते हैं, every real number is an irrational number। अरे भाई every तो नहीं होगा, इसका उल्टा होगा, इसका उल्टा होगा, मतलब every irrational number is a real number। सही है, ट्रू है, लेकिन every real number is an irrational number नहीं होगा, फॉल्स होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? every real number is an irrational number नहीं। अच्छा, एक रियल नंबर का एग्जाम्पल लेते हैं, एक रियल नंबर का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो मान लो एक रियल नंबर का एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, मान लो 0.2 है, ठीक है। समझ में आ रहा है? ध्यान से सुनना मेरे बात को। 0.2 क्या है? एक रियल नंबर है, रियल नंबर है। अच्छा, 0.2 को मैंने लिखूंगा 2/10। अच्छा, 2/10 क्या हो गया? रेशनल नंबर हो गया। क्या हो गया? रेशनल नंबर हो गया ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्वेश्चन क्या पूछा गया? एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर नहीं 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 नहीं, बस इस केस में देखिए 0.2 क्या है? एक रियल नंबर है, तो 0.2 can be written as 2/10। तो 2/10 means which can be expressed in the form of p by q, where p and q are integers and q not equal to 0। so 2/10 कौन है? रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। तो इन दिस केस कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड, तो क्या हुआ? फॉल्स हुआ। फॉल्स हुआ कि नहीं? बिकॉज यू नो दैट रियल नंबर का डेफिनेशन क्या है? रियल नंबर का डेफिनेशन है इट कंसिस्ट ऑफ बोथ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। क्लियर है कि नहीं? है कि नहीं? अच्छा, मान लो मैं √2 लिखूंगा या √3 लिखूंगा, इस केस में सेटिस्फाई है। सो √2 √3 रियल नंबर है एज वेल एज भी रेशनल नंबर है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, तो √2 √3 रियल नंबर, यस राइट, इरेशनल नंबर, यस राइट। इस केस में सेटिस्फाइड, बट नॉट इस केस में नॉट सेटिस्फाइड। सो दैट इज व्हाई 0.2 इन दिस केस क्वेश्चन इज आस्किंग एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल। अरे भाई एवरी नहीं होगा, every real number is an irrational number नहीं होगा। in this case condition not satisfied। look at here 0.2 can be converted as 2/10। 2/10 कौन है? रेशनल नंबर है। समझ पा रहे कि नहीं? लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया? every real number is an irrational number नहीं 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 नहीं। so in this case क्या है? false है। in this case क्या है? false है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, तो dear students, if you really like this video, please like this video and subscribe to my YouTube channel। ठीक है? Okay, next question number 2. Look at here, question number 2. Is it visible? Yeah. Question number 2. Are the square roots of all positive integers irrational? If not, give an example. Very interesting question. Very interesting question. Look at here. Are the square root of all positive integers? देखते हैं, चेक करते हैं, होता है कि नहीं होता है। All positive integers, जितने सारे positive integer है, irrational होगा क्या? Question mark है। If not, give an example of that number which is a rational number। ओके, चेक करते हैं, ये एग्जाम्पल लेते हैं, चेक करते हैं, ये एग्जाम्पल लेते हैं। एट द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, मान लो एक पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं, मान लो 4 है, ठीक है। अच्छा, इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 4 का आंसर क्या है? 2 है। अच्छा, 2 आपका क्या हो गया? मुझे बता सकते हो 2 कौन है? बता सकते हो 2 क्या है? एक रेशनल नंबर है कि नहीं? क्वेश्चन क्या पूछा गया? एट द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। नहीं 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 नहीं, तो 4 एक नंबर ले लिया, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 कौन है? 2 है, तो 2 कौन है? एक रेशनल नंबर है। समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं? अच्छा, तो मान लो मैं 7 लूंगा, ठीक है। अच्छा, 7 का स्क्वायर रूट निकालो, दैट इज अंडर रूट ऑफ 7। तो अंडर रूट ऑफ 7 कौन है? इरेशनल नंबर है। कौन है? इरेशनल नंबर है। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? सो इन दिस केस क्या हो रहा है? आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स? नहीं, ऑल तो नहीं होगा। ये जो ऑल वर्ड दिखाया गया है, ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, नहीं नहीं नहीं, ऑल नहीं होगा। नो 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 नो, मतलब फॉल्स। सब केसेस में सेटिस्फाई नहीं होगा, कुछ कुछ केस सेटिस्फाई, नॉट ऑल। ये जो ऑल के बारे में लिखा गया है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, नहीं, नो।
आपका आंसर क्या है? नो. नो, all the positive that is all. No, the square roots of all positive integers are not irrational. In this way you have to write the answer. No, the square roots of all positive integers are irrational. कैसे कैसे कैसे? जैसे कि 4 ले लिया, ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होगा भाई? 2 होगा. 2 कौन है भाई? रेशनल नंबर है ना. समझ पा रहे कि नहीं? लेकिन अगर 7 लेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 7 या अंडर रूट ऑफ 7 इज व्हाट? इरेशनल नंबर. या 3 लेंगे, दैट इज अंडर रूट ऑफ 3, ये कौन है ना? इरेशनल नंबर है. समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन अगर मैं 9 लूंगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 9, स्क्वायर रूट ऑफ 9 कौन है ना? 3 है. 3 कौन है? एक रेशनल नंबर है. समझ में आ रहा है कि नहीं? 3 कौन है? एक रेशनल नंबर है. ओके, तो क्वेश्चन पूछा गया है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? नहीं. नो. नो, सब केसेस में सेटिस्फाई नहीं होगा. Okay, the example is like this. In this case, you have to say that look at here this part. That is 4 है, ठीक है. तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 कौन है? 2 है. तो 2 कौन है? एक रेशनल नंबर है. 9 को देखिए, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9, स्क्वायर रूट ऑफ 9 कौन है? 3 है. दैट इज अंडर रूट ऑफ 9 इज व्हाट? 3. 3 कौन है? एक रेशनल नंबर है. समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसा ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, ठीक है. द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, लुक एट क्वेश्चन नंबर 3. So how under root of 5 can be represented on the number line? So how under root of 5 can be represented on the number line? ठीक है, तो इसको आंसर निकलने से पहले आई एम जस्ट टेलिंग व्हाट दैट इज अ पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम आपको पढ़ना जरूरी है. पाइथागोरस थ्योरम कौन है भाई? दैट इज एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अरे भाई, ये एच कौन है? पी कौन है? बी कौन है? ठीक है, तो मान लो मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल लेता हूँ लाइक दिस. लुक एट हियर, दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल. ओके, दैट इज ए बी सी. ठीक है, सो दिस वन इज एच मतलब हाइपोटेन्यूज, दिस वन इज बी मतलब बेस, दिस वन इज पी मतलब परपेंडिकुलर. ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? ओके, तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो एच कैसे फाइंड आउट करेंगे? दैट इज एच इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दैट इज पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. क्लियर है? क्लियर है. सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट दैट यू हैव टू रिमेंबर. ओके, so now just think about your brain. So how under root of 5 can be represented on the number line? इसको नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? थोड़ा बहुत दिमाग लगाइए, थोड़ा बहुत दिमाग लगाइए. मैं एक डायग्राम करता हूँ. ये जस्ट लुक एट हियर, जस्ट लुक एट हियर. आई एम जस्ट ड्राइंग द डायग्राम लाइक दिस. इस तरह से मैं एक डायग्राम बनाता हूँ एक राइट एंगल ट्राइंगल का. जस्ट लुक एट हियर. लेट दिस वन इज ए, लेट दिस वन इज बी एंड दिस वन इज सी. ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है एंड दिस वन इज व्हाट? 90 डिग्री. क्लियर है? अच्छा, तो मैंने क्या किया, थोड़ा बहुत दिमाग लगाया. ठीक है, तो मान लो ये 2 सेंटीमीटर है, तो मान लो ये 1 सेंटीमीटर है, तो ये भाई साहब क्या होगा? टेल मी, कैन यू प्लीज टेल मी? लेट दिस वन इज 2 सेंटीमीटर, लेट दिस वन इज 1 सेंटीमीटर. तो कैन यू प्लीज टेल मी ए सी का वैल्यू कितना होगा? कैन यू प्लीज टेल मी? सो लुक एट हियर, ए बी सी इज अ व्हाट? राइट एंगल ट्रायंगल. तो ए सी क्या है? हाइपोटेन्यूज है. ए सी क्या है? हाइपोटेन्यूज है. तो फॉर्मूला क्या है हाइपोटेन्यूज का? दैट इज पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. लुक एट हियर, दैट इज पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर. होगा कि नहीं? अच्छा, पी मतलब परपेंडिकुलर, बी मतलब बेस, है कि नहीं? सो लुक एट हियर, परपेंडिकुलर कौन है ना? 1 है, दैट इज 1 का स्क्वायर. बेस कौन है ना? 2 है कि नहीं? सो दिस वन इज, लुक एट हियर, दैट दिस वन इज 1 प्लस 4, दैट इज व्हाट? अंडर रूट ऑफ 5. हो गया कौन? दिस पार्ट. ओके, सो दैट मीन्स यू कैन से दैट दिस वन इज अंडर रूट ऑफ 5. यू कैन से दैट दिस वन इज अंडर रूट ऑफ 5. तो इससे आपको क्या पता चला? व्हाट वी अंडरस्टैंड हियर मीन्स द बेस शुड बी 2 यूनिट्स, दैट इज लेट 2 सेंटीमीटर, and the perpendicular should be 1 unit, that is 1 centimeter. Definitely you are joining this AC, and AC is called as the hypotenuse, which one is under root of 5. समझ में आ रहा है? लेकिन आप उसको नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे ड्रॉ करेंगे? देखो ध्यान से देखो, वेरी सिंपल है, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है. जस्ट लुक एट इट. आपको करना क्या है? आपको करना क्या है? पहले आप क्या करेंगे? 2 सेंटीमीटर या 2 यूनिट का मेजरमेंट करेंगे. ठीक है, तो मान लो मैंने इस तरह से ले लिया. सो दिस टू दिस. ओके, so let this one is A and this one is B. तो ये कितना के है? 2 यूनिट का है या 2 सेंटीमीटर. लेट दिस वन इज 2 सेंटीमीटर. क्लियर है? ओके, तो एट पॉइंट नंबर B, लेट दिस वन इज अ बिग नंबर लाइन ओवर हियर. ओके, एट पॉइंट नंबर B you have to make a right angle, that is 90 डिग्री. ये तो पता है आपको 90 डिग्री कैसे ड्रॉ किया जाता है. You know it very well with the help of compass. With the help of compass you have to draw a, that is right angle triangle. You know 90 degree how to draw that. Okay, you know it very well. Okay, so like this you have to make a what? Just like that, just like that, just like that. Okay, so this this one is a what?
दैट इज अ राइट एंगल 90 डिग्री, यू हैव टू ड्रॉ इट। ओके, तो इस तरह से आप आप बनाएंगे लाइक दिस। ओके, देन आफ्टर BA, there is a perpendicular that is 1 यूनिट या 1 सेंटीमीटर है। 1 यूनिट मतलब 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आप कंपास में मेजरमेंट करेंगे, दिस वन, ये आपका 90 डिग्री है, ठीक है। अच्छा, कंपास में मेजरमेंट करेंगे तो मान लो दिस वन अप टू दिस पार्ट में यहाँ पे 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट मेजरमेंट करेंगे, कट करेंगे, तो ये पॉइंट है, तो ये आपका हो गया कितना, 1 सेंटीमीटर। कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर हो गया। ओके, तो AB, इसका नाम C है, C दे देते हैं, ABC। ओके, so now after that A and C you have to join it। आपको करना क्या है, simply you have to join it, AC simply you have to join it। okay, so this one is 2 centimeter and this one is, ये वाला आपका 1 सेंटीमीटर का है। क्लियर है? so I am writing look at here। तो मेरे कहने का मतलब है that is, let's suppose you have to take it as that is AB you have to take it as 2 centimeter here and BC you have to take it as 1 centimeter। तो obviously AC will be what, under root of 5। कैसे हुआ, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। कैसे हुआ, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। AC को अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, जस्ट लाइक दैट इज AC इज व्हाट, हाइपोटेन्यूज ना, है कि नहीं, दैट इज p² प्लस b²। सो लुक एट हियर, p² मतलब हियर 1 का स्क्वायर, b मतलब बेस, लुक एट हियर, है कि नहीं। तो कितना हो गया, 1 प्लस 2 का स्क्वायर कितना, 4। तो हो गया ना अंडर रूट ऑफ 5, हो गया ना अंडर रूट ऑफ 5। सो दैट मीन्स यू कैन से दैट AC इज व्हाट, अंडर रूट ऑफ 5। लेकिन क्वेश्चन इज किंग हाउ अंडर रूट ऑफ 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। इसको आप नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अच्छा, ये जो AC है, आप क्या करेंगे, कॉम्पास का पिन पॉइंट A में रखेंगे, ठीक है, एंड कॉम्पास को जो पेंसिल पॉइंट में C में एग्जैक्टली पॉइंट में रखेंगे। समझ में आ रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। माय पॉइंट इज दैट कॉम्पास पिन पॉइंट यू हैव टू मेक इट ओवर योर पॉइंट नंबर A फिक्स, एंड कॉम्पास का पेंसिल पॉइंट पॉइंट नंबर C एग्जैक्ट मैचिंग करना है, ठीक है। So that means you have to take A as center and AC as a radius। You have to take A as center and AC as a radius and draw an arc over the number line। Draw an arc over the number line। Clear है? You have to take A as center and AC as a radius and make an arc over the number line and that intersect the number line। Let this point is what, P। So this P indicates under root of 5 on the number line। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ, again I am repeating। You have to take A as center and AC as a radius and draw an arc on the number line and the arc cut over the number line at point number P। So the point number P indicates under root of 5 on the number line, right? Okay, right? So in this way you have to draw anything else, under root of 3, under root of 7, under root of 5, like this you have to draw it, okay, on the number line। Clear है? Okay, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट्स, इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।